Hello everyone, welcome back in our online session. I am Naina Gite ma'am, your maths teacher. Today in our math session we are going to see our second lesson parallel lines and transversal practice set 2.2. Practice set 2.2. Then let's start our session. आज हम प्रैक्टिस सेट 2.2 के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं प्रॉपर्टीज का यूज करके करस्पॉन्डिंग एंगल्स interior angle, linear pair, etc. Our first example you can see on the screen. First I read the example, listen carefully. In the adjoint figure, line P parallel to Q, line P and line S are transversal. Find measure of angle X and angle Y using the measure of angles given in the figure. Our first question. There are two lines P and Q, both are parallel to each other, and T and S, two transversal are there. You have to find out angle X and angle Y. Now see the figure. देखो हमें दिए गए फिगर में P and Q both are parallel to each other. दो लाइन्स पैरेलल है this P line and this Q line. Okay. Line T and line S both are transversal. They intersect P at this point and this point, and Q at this point and this point. Okay. Information given. This angle is given 40 degree. This angle is given 70 degree. This angle is Y and this angle is X. You have to find out angle X and angle Y. Solution. जो हमें दिया है वो हम सॉल्यूशन में शुरुआत में लिखेंगे. ओके. इन द फिगर लेट एंगल ए एंड एंगल बी. एंगल ए एंड एंगल बी. हमें यहाँ पे ए लिखना है आपको. हमें दिए गए फिगर में एंगल ए और एंगल बी मान लेते हैं हम लोग. यहाँ पे ये जो एंगल तैयार होता है यहाँ पे, इसे मैं ए मानूंगी और इस साइड पे जो एंगल है इसे मैं बी मानूंगी. ओके. दिस एंगल इज शोन एज बाय ए एंड दिस एंगल शोन एज बाय बी. तो हमें इस दिए गए डायग्राम में फिगर में ये जो एंगल है उसको मैंने ए और बी मान लिया है क्योंकि P and Q are both lines are parallel to each other. P and Q are both lines are parallel to each other. So this angle and this angle, both angles are corresponding angle. Okay. And this is transversal line. And this angle जो हमने मान लिया है कि इस एंगल को हमने B से दर्शाया है, ये एंगल इस एंगल का अपोजिट एंगल है. Then you can directly say if this is 70 degree, then you can say angle B is equal to 70 degree. Why? Because of opposite angles. तो इस अपोजिट एंगल से हम B का मेजरमेंट निकाल लेंगे. B का मेजरमेंट आने पर Y का आप निकाल सकते हैं बिकॉज बोथ आर इंटीरियर एंगल्स. ओके. यहाँ पे हमने A एंगल मान लिया है. दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल टू 40. सो property of corresponding angle, this is 40, then corresponding angle A is also 40. ये हमें 40 मिल गया ये एंगल, तो हम x को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. तो हमें इसके लिए यहाँ पे ये सब हमने पहले से डिसाइड कर लिया है. दिस एंगल शुड बी A, दिस एंगल शुड बी B. अभी हम सॉल्व करते हैं. सो आई राइट हियर लेट एंगल A एंड एंगल B इन फिगर. तो हमने फिगर में A और B को मान लिया है. Okay. Then write down line parallel P and Q. So line P parallel to line Q and line P and S are transversal. यहाँ पे आपको S लिखना है. P and S are transversal line. Okay. Therefore, measure of angle A is equal to 40 degree.
तो मैंने जो एंगल ए यहाँ पे लिखा था इसका मेजरमेंट मैंने 40 दिखाया। किस बेस पे? क्योंकि एंगल ए एंड दिस 40 बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल। जिसका मेजरमेंट 40 है, ये वाला एंगल और ये एंगल बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल। इसलिए यदि ये एंगल 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। सो आई राइट हियर measurement of angle A is equal to 40 degree. Give the reason corresponding angles. Okay. अभी ये हमें मिल गया है तो you can find out angle X. Both are linear pair. Both are linear pair. So on next step, measurement of angle X plus measurement of angle A is equal to 180 degree. 180 degree. तो अभी यहाँ पे हम ये 180 डिग्री क्यों लिया? लीनियर पेयर है। कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो ये और ये एंगल दोनों को अगर हमने इस तरह से लिया तो ये एंगल पूरा लीनियर पेयर हो रहा है। और लीनियर पेयर इनका एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। सो आई राइट हियर एंगल एक्स प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। गिव द रीजन लीनियर पेयर। हमारे पास ए एंगल मिल गया है, दिस इज 40। ओके, ये एंगल का मेजरमेंट हमें मिल गया है 40, तो वैल्यू हम पुट करेंगे ऑन नेक्स्ट स्टेप। मेजरमेंट एंगल एक्स प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। सो 40 को हम RHS में ट्रांसफ़र करते हैं। सो ऑन नेक्स्ट स्टेप मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 40। 180 minus 40. 180 after subtracting 40 from 180, you get on next step measurement of angle x is equal to 1 minus 40 is equal to 140. Okay, so you get angle x is equal to 140. अगेन मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाने के लिए ड्रॉ की है कि आपको वही एग्जाम्पल हमारा कंटिन्यूस हो रहा है। ओके, अभी एक्स एंगल हमें मिल गया। ओके, हमने यहाँ पे एंगल बी मान लिया है, जो पहले स्क्रीन में था यहाँ पे मैंने बी मान लिया था। तो बी इज अपोजिट टू दिस एंगल। ओके, अगर आपको वापस अच्छे से समझाने के लिए वापस मैं यहाँ पे दर्शाती हूँ। यहाँ पे यू कैन सी हियर दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर अपोजिट एंगल्स। और इसको मैंने क्या माना है? आपने बी। मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल क्या लिखा है? मैंने बी लिखा है। हमें पूछा नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे एक्स और वाई को फाइंड आउट करने के लिए हमने उस एंगल को पहले दिखाया है। तो ये बी एंगल जो है, ये दिस एंगल इज अपोजिट टू दिस एंगल, इस जिसका मेजरमेंट 70 है, इस एंगल का ये एंगल बी एंगल अपोजिट है। यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ अपोजिट एंगल्स, दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब बोथ आर इक्वल, दोनों का मेजरमेंट एक ही होता है। इफ दिस एंगल इज 70, देन यू कैन राइट डायरेक्टली measurement of angle B is equal to 70. So I write on next step measurement of B is equal to 70 opposite angles. Okay, पहले हमने x फाइंड आउट किया, अभी हमें y फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने यहाँ का एंगल फाइंड आउट कर लिया, जो हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा था, फिर भी हमने फाइंड आउट किया है। यस, यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ टू फाइंड आउट y we use interior property. Both angle, this angle and this angle, both are interior angles, pair of interior angles. You know the property of, पिछले सेशन में हमने प्रॉपर्टी देखी थी, interior angles are always supplementary. Interior angles are always supplementary. मीन्स इनका एडिशन भी 180 होगा। एडिशन क्या होगा? 180 होगा। सो ऑन नेक्स्ट स्टेज, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल। अभी एस ट्रांसवर्सल है इस लाइन के लिए, पी और की के लिए। यहाँ पे हमें एक्सपेंड करना था, तो हमने पहले टी दर्शा दी। ओके, देन
मेजरमेंट ऑफ एंगल है y, ओके, मेजरमेंट ऑफ एंगल y प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री. इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यू कैन राइट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, उनका एडिशन 180 होता है. ओके, हमें हमारे पास एंगल बी मिल गया है अपोजिट ऑफ दिस 70. सो पुट द वैल्यू ऑफ बी ऑन नेक्स्ट स्टेप. मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई प्लस 70 इज इक्वल टू 180. देयरफॉर टू फाइंड आउट वाई, ट्रांसफर 70 टू RHS, इस साइड में हमें ट्रांसफर करना है. देयरफॉर ऑन नेक्स्ट स्टेप मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 70. ओके, 180 में से 70 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू गेट ऑन नेक्स्ट स्टेप मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू 110. 180 माइनस 70 you get 110, 110 degree. In this way we find out measurement of angle x which is 140 and measurement of angle y which is 110. मतलब इस एग्जाम्पल में हमने इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ की, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की और अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी का यूज़ किया है हमने. ओके, नाउ see last write in answer measurement of angle x is equal to 140, measurement of angle y is equal to 110. Okay, our next example you can see on the screen. First I read the example, listen carefully. In the ordained figure, line A parallel to line B, line L is a transversal. Find the measure of angle x, angle y, angle z using the given information. चलो पहले हम फिगर की तरफ देखते हैं. नाउ सी फिगर. ओके, क्वेश्चन में क्या कहा है कि लाइन ए और बी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. नाउ सी लाइन ए, दिस इज लाइन ए, दिस इज लाइन बी, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. अभी फिगर थोड़ा सा अलग दिया है हमें. पैरेलल लाइन यहाँ पे हमें इस तरह से दिए हैं. पहले एग्जांपल में हमें सिंपल ऐसे लाइन्स दी थी, तो ये पैरेलल है. और दिस ब्लू लाइन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन ए एंड बी, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. अभी फिगर में क्या क्या दिया है देखते हैं हम लोग. यहाँ पे हमें सिर्फ ए एंगल का मेजरमेंट दिया है, दिस इज़ 105. ओके, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी है कि इस एंगल, ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट है 105, इसका जो माप है 105 है, 105 डिग्री. और यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल x, दिस एंगल y एंड दिस एंगल z. तो हमें 3 एंगल फाइंड आउट करने हैं. ओके, ये अभी दिख रहे हैं ना आपको रेड मार्क से, और ये येलो. तो हमें तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं. Solution, write down line A parallel to line B and line L is a transversal line. ओके, जो दिया है मैंने लिख लिया है. यहाँ पे R गलती से हुआ है, आप L is a transversal line लिखिए. ओके, अभी हमें सिर्फ 105 के आधार से हमें x, y और z को ढूंढना है. नाउ सी फिगर केयरफुली. दिस एंगल इज 105 डिग्री. दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. कौन से एंगल है ये दोनों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर कॉन्ग्रुएंट. मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है. सो दिस मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज 105, देन मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज ऑल्सो 105. मीन्स वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 105 डिग्री. 105 degree. Then this angle and this angle both are opposite angles. Both are opposite angle. So if x is equal to 105, then you can directly say y is equal to 105, because measurement of angle y is equal to measurement of angle x, because of both are opposite angles. Both are opposite angles. Then angle z, this is 105, this is linear pair, so addition is 180 degree.
then you can find out z. Then see मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू 105. यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है, रीजन दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल. लिसन केयरफुली एंड लिसन ऑब्जर्व केयरफुली. ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल से है, इसलिए इस एंगल का मेजरमेंट 105 डिग्री है, 105. देन दिस एंगल एक्स ऑल्सो 105 डिग्री. So write here measurement of angle x is equal to 105 corresponding angles. Next, angle y congruent angle x, right? Why? Angle x and angle y both are congruent because they are opposite angles. Opposite angles, right? Measurement of angle y is equal to measurement of angle x, opposite angles. So measurement of y is equal to एक्स की जो वैल्यू फाइंड आउट की वही होगी 105. सो राइट डाउन देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू 105 डिग्री. तो हमें वाई की भी वैल्यू मिल गई 105 डिग्री. ओके, हियर यूज लीनियर पेयर. ओके, यूज लीनियर पेयर. वाई इज इक्वल टू 105. नेक्स्ट स्टेप, measurement of angle z plus 105 is equal to 180 degree. So this is linear pair, angles in linear pair. ये दोनों अगर आप देखेंगे इस तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ पेन की सहायता से. ये एंगल रेड वाला, ये येलो वाला, ये दोनों linear pair के एंगल्स हैं. बोथ आर linear pairs एंगल, इसलिए दोनों की एडिशन 180 होगी. समझाया? लीनियर पेयर कैसे आपको पहचानना है, जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर एक जो लाइन है, इस लाइन के इस बाजू में और इस बाजू में ये दोनों एंगल होते हैं. दिस एंगल्स आर कॉल्ड एज ए लीनियर पेयर. इनका 180 होता है और सप्लीमेंट्री एंगल भी 180 होता है. लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल जैसे इंटीरियर में हमने पेयर लिए तब उनका कोई भी दो एंगल्स का एडिशन अगर 180 आ रहा है, दिस एंगल्स आर कॉल्ड एज अ सप्लीमेंट्री. और यहाँ पे एक ही इसमें आपको दिख रहा है रेज में, इस अपोजिट साइड में है, और ये दिस एंगल्स आर आल्सो विथ एडिशन 180, बट दिस एंगल्स आर कॉल्ड एज अ लीनियर पेयर. सो मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल जेड प्लस 105 इज इक्वल टू 180, एंगल्स इन लीनियर पेयर. ओके, और नेक्स्ट स्टेप, मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 105. मैंने 105 को RHS में ट्रांसफ़र कर दिया है. अभी 180 में से 105 को माइनस करना है. आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग यू गेट मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड इज इक्वल टू 75 डिग्री. कितना मिला मुझे? 75 डिग्री. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू 105 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू 105 and measurement of angle z is equal to 75 डिग्री. मीन्स इन सेकंड एग्जाम्पल में हमने वापस लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की, अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ की एंड करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की, और x y और z की वैल्यू हमने फाइंड आउट की.